Yes, next videos on straight lines, remaining questions of exercise 10.3 and few new concepts related to the higher exercises 10.4. The first I have taken the concept, the equation of family of lines passing through the intersection of two lines. Normally students get confused when intersection of two lines. They may find out the points, coordinates, intersecting points, but here the purpose is to find out the equation of the lines. Let the two lines be L1 identicals, मैंने ये let कर ली, L2 ये let कर ली. Equation of family of line passing through the intersection of the line first and second is first line plus lambda times second line is equal to 0. This will again represent a line because the concept is कि linear equation in two variable represent a lines. This is your supplement exercise of your NCERT books that normally हम उसको 10.4 कह देते हैं. But two questions regarding this topic is in your miscellaneous exercise. One is your question number 6 on page number 333, 233, and second is your question number 12 on same page, and 4 questions are given in this. I am taking the miscellaneous concepts. Question number 6 first I am taking. Find the equation of the line parallel to y-axis. One condition is parallel to y-axis, that is slope is 1/0. Equation of L1 drawn through the point of intersection of the lines. L1 given में है x minus 7y plus 5 0 and L2 आइडेंटिकल्स हैं 3x plus y 0. आप लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन passing through the intersections of the lines is x minus 7y plus 5 plus lambda times 3x plus y is equal to 0. इसको x कॉमन लेके 1 plus 3 लैम्डा रखो प्लस y कॉमन लेके माइनस m लैम्डा प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. Third is parallel to y-axis. Equation number 3 is parallel to y-axis, that is slopes minus coefficient of x upon coefficient of y is equal to 1/0 because slope of y-axis is 1/0. Cross multiply lambda minus 7 is equal to 0, lambda is equal to 7. From third, if you put lambda is equal to 7, 22x प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर आंसर.
दिस इज योर आंसर प्लस दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। मीन्स ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बेसिकली आनी चाहिए। नाउ लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 12 आल्सो, सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नंबर 12 इक्वेशन ऑफ L1। हम चाहें तो इसी में चेंज कर सकते हैं। L1 इक्वेशंस जो गिवन में है क्वेश्चन नंबर 12 की, इन प्लेस ऑफ 6 आई एम चेंजिंग इट 12। 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस y is equal to 0 that has equal intercept on the axis। कंडीशन क्या है? इक्वल intercepts on the axis, that is x intercept equal to y intercept। This implies minus c upon a is equal to minus c upon b। This implies a is equal to b। This implies coefficient of x is equal to coefficient of y। ये इक्वल इंटरसेप्ट के मीनिंग्स हैं। माइनस सी अपॉन ए ये मैंने जर्नल इक्वेशन से लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे 4x प्लस 7y माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इज 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। x की टर्म्स 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस y की टर्म्स 7 माइनस 3 लैम्डा प्लस माइनस 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। कंडीशन लगा लीजिए, इक्वल इंटरसेप्ट्स इंप्लाइज कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y। 4 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 7 माइनस 3 लैम्डा। 5 लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू 3/5। From third, if you put lambda is 3/5, it will be 26x by 5, 35/9, 26y by 5 is equal to 3, 15 minus 12/5 is equal to 0. The equation is 26x प्लस 25 और 20 इज इक्वल टू 12। 2 कैंसिल कर सकते हैं, आंसर बिकम्स 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। तो ये कंडीशन है, आप जितनी ध्यान से थ्योरी पढ़ेंगे उतना ही आपके पास बेटर रिजल्ट्स रहेगा। तो दिस इज योर एक्सरसाइज। एक्चुअली आई हैव टेकन 10.4। Let me take a very important articles, and in your NCERT books it is given as a questions। I am taking your question number 13। वो इस टाइप से रिलेटेड नहीं है, दिस टाइप इज कंप्लीट। आपको सप्लीमेंट के सारे सम्स इससे खुद करने, NCERT में 3-4 सम्स मिल जाएंगे, बहुत ईजी सम्स हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स यू कैन पुट द डाउट्स ऑन व्हाट्सएप्स।
और वो मेरे से आप डाउट्स कवर कर सकते हैं। पर जितनी टाइप्स मैंने आपको दी हैं वो टाइप्स आप कवर करेंगे। सबसे पहले बार बार इनकी वीडियोस को देख के इनके नोट्स बनाइए, फिर हम इन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी हम एक एक दो क्वेश्चंस करके सिर्फ आपको टाइप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रैक्टिस विल बी लेटर ऑन। I am taking your question number 13. Show that the equation of the line passing through the origins makes an angle theta with the line. Show that the equation of a line passing through origin makes an angle theta with the line y is equal to mx plus c is y minus 0 is equal to m plus minus tangent theta 1 minus plus m tangent theta into x minus 0. This is question number 13. In extra books, complete one exercise is given on the basis of these questions. फिगर बना लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन, मीन ये पॉइंट मैंने ओरिजिन ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, एंड दिस इज अनदर लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस लाइन. तो टारगेट यह है कि आपने इक्वेशन ऑफ ओ ए निकालनी है. आपने क्या निकालनी है? इक्वेशंस ऑफ ओ ए. प्लस माइनस साइन इंडिकेट करता है कि दो टाइप की लाइनें आएंगी. ऑफ कोर्स दो लाइनें पॉसिबल हैं. मीन्स अगर जो आप ये लाइन है तो ये भी एक लाइन हो सकती है, तो एक एंगल ये भी हो सकता है. तो इसलिए हम प्लस माइनस की बात करते हैं. ये भी ओरिजिन से पास कर रही है रेड लाइन, इसलिए प्लस माइनस में दो आते हैं. तो सबसे पहले तो हम लेट स्लोप ऑफ ओ ए कैपिटल एम ले लेते हैं. देन एंगल्स बिटवीन लाइन्स ओ ए एंड ए बी इज थीटा. ये भी गिवन में है. देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज m माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू स्मॉल m मॉड के साथ. मॉड हटेगा तो इधर प्लस माइनस टेंजेंट थीटा आएगा इंटू 1 प्लस कैपिटल M स्मॉल m इज इक्वल टू m माइनस स्मॉल m. कैपिटल M की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 1 माइनस प्लस m टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस माइनस टेंजेंट थीटा. मैंने ब्रैकेट ओपन करके m वाली टर्म एक तरफ ले ली, दूसरी टर्म दूसरी तरफ. तो कैपिटल M आपके पास आ गया m प्लस माइनस टेंजेंट थीटा और m मैंने क्या लिया था? स्लोप ऑफ ओ ए. एंड ओ ए कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ओ ए विल बी y माइनस 0 इज इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स ऑफ, एंड कैपिटल M की वैल्यू आपको पता है. तो बुक के अकॉर्डिंगली आंसर वही आ गया कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स हैं,
अगर जो आप डायरेक्ट रिजल्ट्स भी याद रख लेते हैं तो एक्स्ट्रा सम करने में इजी रहता है। अदरवाइज आप ये ध्यान रखेंगे जिसकी स्लोप निकालनी है उसको कैपिटल एम। ये प्लस माइनस में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैंने कैपिटल एम वाली वैल्यू को उधर शिफ्ट किया, प्लस को शिफ्ट करूंगा तो माइनस, माइनस को शिफ्ट करूंगा तो प्लस, क्योंकि एम पॉजिटिव था। और ये स्मॉल एम समझ लो इधर ले आए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चेंज कर दिए। तो मीन्स ये थोड़ी सी टेक्निक्स आप इस तरीके से रख सकते हैं। आप चाहें तो मैं यहाँ पे एक स्टेप्स और लिख लेता हूँ कि प्लस माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम टेंजेंट थीटा प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस प्लस एम इंटू स्मॉल एम इंटू टेंजेंट थीटा। अब आसानी से रह जाएगा, इधर से m कॉमन आ जाएगा, इधर से स्मॉल m, ताकि आपको इस स्टेप्स में डाउट ना रहे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी बुक में एग्जाम क्वेश्चन एक्स में नंबर 11 दिया हुआ है। मैं स्टेटमेंट समझा देता हूं, सम आपको खुद करना चाहिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। लिखे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, फिगर बना देता हूं, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2, ओके सेम पॉइंट है, लेट ए इज ए पॉइंट 3 2, क्लियर। मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, इसके साथ ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है विद द लाइन की इक्वेशंस है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इसमें मतलब स्मॉल स्लोप m की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से स्लोप निकल जाएगी। इसकी स्लोप वही कैपिटल M ले लेंगे, यहाँ से भी दो ही लाइनें आएंगी, या ये एंगल आएगा या ये एंगल आएगा, क्योंकि ये एंगल भी 45 हो सकता है, 180 माइनस थीटा या 45। अब इसमें सेम टेक्निक्स हैं, स्मॉल m की जगह 1/2 रखो, थीटा की जगह 45 रखो, पूरी कैलकुलेशंस करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, कैलकुलेशन आप एग्जीक्यूट करेंगे। दोबारा देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन, सेम क्वेश्चंस हैं। आप ए बी की स्लोप कैपिटल M ले लेंगे। अब चाहें तो मैं हिंट दे सकता हूं कि लेट स्लोप ऑफ ए बी इज कैपिटल M, तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू M माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M/2, मॉड का साइन, तो दिस इज प्लस माइनस 1 प्लस M/2 इज इक्वल टू M/2 माइनस 1/2, सेम प्लस माइनस 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कैपिटल M कॉमन 1 माइनस प्लस 1/2, तो 3/2 इज इक्वल टू M/2 और माइनस 1/2 इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ 3/2। तो वंस कैपिटल एक वैल्यू M की 3 आ रही है और दूसरी वैल्यू माइनस 1/3 आ रही है। तो इक्वेशंस ऑफ ए बी विल बी y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 और y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/3 ऑफ x माइनस 3। So this is 3x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो दीज टू विल बी द आंसर्स। फिर भी मैंने बातों में सॉल्व कर दिया। आल्दो ऐसे आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज में बहुत सारे सम्स मिल जाएंगे। नाउ एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट आई एम टेकिंग। लेट अस टेक नाउ एक्सरसाइज 10.3. We will try to complete exercise 1.10.3.
यस, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस लेना शुरू कर देंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस whose distance from the line is 4 यूनिट। लाइन आपके पास है x/3। देखिए, कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 लेंगे। लेट a be on x एक्सिस, दैट इज a के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं h, 0। This is a line L whose equation is x/3 plus y/4 is equal to 1. इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास 4x plus 3y minus 12 is equal to 0। मैंने फ्रॉम फर्स्ट लिखा, एलसीएम्स लेके लिख दिया। डिस्टेंस AL is given to be 4 units। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हो गया AL इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज 4h प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज 4h माइनस 12 मॉड हटेगा तो दिस इज प्लस माइनस 20। 4h इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 प्लस 12, दैट इज h इज इक्वल टू 32/4 और माइनस 8/4, दैट इज 8, और माइनस 2। देयरफॉर पॉइंट A इज 8, 0 और माइनस 2, 0। दोनों ही पॉइंट आपके x एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 दैट आई एम टेकन। इसी तरीके से सेम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये आप ट्राई योरसेल्फ, लगभग सेम है। जो जो नंबरिंग मैं सेम करके दे रहा हूँ इसी तरीके से करेंगे। पेज नंबर 227 पे मिल जाएगा आपको। नॉट सॉरी 220, नॉट 227 बट 233 पे। इसमें सिर्फ चेंज इतना दिया हो कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है। इफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस तो कोऑर्डिनेट आप ए क्या ले लोगे, 0, h ले लेंगे। ठीक है, लाइन यही है, डिस्टेंस भी 4 यूनिट है, ये 0 हो जाएगा, ये 3h आ जाएगा, ये 3h माइनस 12 प्लस माइनस 20। तो इसी टाइप से कोई कैलकुलेशन आ जाएंगी जो आपको करना है। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मैंने अभी डिस्कस किया, 6 ऑलरेडी डन है, 7th 8th 9th डन है, 10th देखिए। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 एंड 4, 1। कोई ये लाइन है, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 10। कोई लाइन है जो एक पॉइंट A से पास कर रही है H3 और दूसरा पॉइंट B है 4, 1, and this line intersect the another line whose equation is 7x minus 9y minus 19, 0 at right angles। ये गिवन में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब यहाँ पे ये लिखेंगे कि AB is perpendicular to line L implies
product of slopes equal to -1. That is, slope of AB into slope of L is -1. AB की स्लोप 3 - 1 अपॉन h - 4 इंटू -7 अपॉन -9 is equal to -1. This is 2. 2 means 14. 9 times of h - 4 is equal to -1. 14 is equal to -9h plus 36. -9h is equal to 14 minus 36, 22. H is equal to 22/9. So this is question number 10 and H is 29, 22/9. यही आपसे पूछा गया है. सिर्फ आप फिगर्स बना लीजिए, रेस्ट ऑफ द पार्ट बिकम्स ऑटोमेटिकली इजी. क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी डन. क्वेश्चन नंबर 12. Two lines passing through the points 2, 3 intersect each other at an angle 60 degree. If slope of one line is 2, find the equations of other lines. Question number 12. Two lines passing through the point 2, 3 intersect each other. दो लाइन्स हैं, एक लाइन L1 है, सेकेंड लाइन L2 है. passes through the point A 2 and 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of L1 is 2, find the equations of lines इक्वेशन ऑफ अदर लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइंस नहीं है, अदर लाइन. अदर लाइन का मतलब जिसकी आप स्लोप लेट करेंगे. मैंने स्लोप है L1 2 ले ली. स्लोप ऑफ L2 को मैं m लेट कर लेता हूँ. एंगल बिटवीन टेंजेंट थीटा 60 डिग्री इज m - 2 अपॉन 1 + 2m इज मॉड टेंजेंट 60 डिग्री इज √3. प्लस माइनस आएगा, मॉड हटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस माइनस √3 इंटू 1 + 2m इज इक्वल टू m - 2. तो 2 प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू m माइनस प्लस 2 √3m. दिस implies m will be equal to 2 plus minus √3 divided by 1 minus plus 2 √3. ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ गया. अब यहां से इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? y - 3 इज इक्वल टू 2 + √3 अपॉन 1 - 2 √3 ऑफ x - 2. दूसरी y - 3 इज इक्वल टू 2 - √3 अपॉन 1 + 2 √3 इंटू x - 2.
तो 2 प्लस रूट 3 ऑफ x माइनस वाई इंटू 1 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस रूट 3 ऑफ x y 1 माइनस 2 रूट 3 y 3 माइनस 4 इट इज माइनस 1 माइनस 2 रूट 3 माइनस 6 तो माइनस 8 रूट 3 इक्वल टू 0। एक आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरे आंसर में y माइनस 3 मीन्स 2 माइनस रूट 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इंटू 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 रूट 3 2 माइनस रूट 3 ऑफ x माइनस वाई इंटू 1 प्लस 2 रूट 3 4 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 टाइम्स ऑफ रूट 3 इक्वल टू 0। थोड़ी सी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, आपको बॉटम तक करनी चाहिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट्स को बार बार ध्यान से पढ़िए, फिगर्स बनाइए, क्योंकि पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही अच्छे तरीके से पकड़ेंगे तभी दूसरे सम्स करने का फ़ायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट्स। इसको आप ऐसे ही मेंशंस करेंगे, इक्वेशंस ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट मीन्स 90 डिग्री, बाइसेक्टर मीन्स मिड पॉइंट्स। of the segments joining the points 3, 4 and -1, 2। देखिए फिगर के हिसाब से ये A.34 एक लाइन सेगमेंट है और ये राइट बाइसेक्टर है, मीन्स सी इज द मिड पॉइंट। आपने एल की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ एल हैव टू बी फाइंड आउट। नाउ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1/2 4 प्लस 2/2 दैट इज 1,3। राइट मैंने पहले ही बता दिया 90 डिग्री है। तो यहां से दो मेथड्स हैं, आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हैं 4 - 2 अपॉन 3 माइनस ऑफ -1 2/4 1/2। तो यहाँ से स्लोप ऑफ एल आ जाएगी -2। तो इक्वेशन ऑफ एल क्या आ जाएगी? y - 3 इज इक्वल टू -2 इंटू x - 1। तो 2x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर आएगी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13।
मीन्स जब तक आप फिगर्स नहीं बनाएंगे आपके ये क्वेश्चंस नहीं चलते, आप जितना मर्जी जोर लगा लें। क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी डन है। क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन meet at the points -1 and 2, find the value of m and c। देखिए मैं ये फिगर्स बना लेता हूँ। ये कोई लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन लेना है, इस लाइन के ऊपर मीट कर रहा है एट द पॉइंट्स -1, 2। इज इट क्लियर? वैल्यू ऑफ एम एंड सी निकालना। तो पहले तो आप इसका नाम लाइन का एल ले लो, स्लोप ऑफ ओ ए निकाल लीजिए कि 2 - 0 अपॉन -1 - 0 दैट इज -2। तो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या आ जाएगी? 1/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या आ जाएगी? y - 2 इज इक्वल टू 1/2 अब x + 1। तो y किसके इक्वल आ गया? x/2 प्लस 1/2 प्लस 2। तो y इज x/2 प्लस 5/2। दिस इम्प्लाइज m इज 1/2 एंड c इज 5/2। कि कंपेयरिंग, इसको फर्स्ट कह दें, यहाँ लिख सकते हैं कंपेयरिंग फर्स्ट विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। कोफिशिएंट ऑफ x तो m है और c आपका ये है, तो इसका मतलब c 5/2 और m इज़ 1/2। मैंने बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन फिगर से आपको समझाया। हाँ, अगर जब बुक से पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी, यहाँ से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, in question number 16, P and Q are the length of the perpendicular from the origin to the lines। फर्स्ट लाइन है L1 is x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta। इक्वेशन ऑफ लाइन L2 है x secant थीटा प्लस y कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू k। 2 प्रूव करना है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ऊपर हेडिंग है P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन्स L1 and L2 respectively। Now equation 1 is in normal form because cos square theta plus sin square theta is equal to 1। कोफिशिएंट ऑफ x का
ये मैंने नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन बताई थी। दिस इम्प्लाइज P इज नथिंग बट दैट इज K टाइम द cos 2 थीटा। इक्वेशन 2 कैन बी written as x by cos theta plus y by sin theta is equal to k. This implies x sin theta plus y cos theta now third is in normal form because sin square theta plus cos square theta is 1. Same concept. Therefore Q is equal to K times of sin theta cos theta. It means it can be written as K by 2 into 2 sin theta, that is K by 2 sin 2 theta. This implies 2Q is equal to K sin 2 theta. इसको आप फोर्थ कह लीजिए, इसको फिफ्थ कह लीजिए। स्केयरिंग एंड एडिंग, फोर्थ का स्केयर प्लस फिफ्थ का स्केयर, देखिए क्या आता है, P स्केयर प्लस 4Q स्केयर इज इक्वल टू K स्केयर टाइम्स ऑफ cos k 2 theta plus sin k 2 theta is equal to 1 is hence proved. ये बेस्ट मेथड है कि जो मैंने नॉर्मल फॉर्म की पहचान से आपको ये सम कराया। आप अगर इसी तरीके से लिखेंगे, पकड़ेंगे, तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये cos 2 थीटा था, इसलिए मुझे इसको भी 2 थीटा में कन्वर्ट करना पड़ा। पहली लाइन ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में दी हुई थी, दूसरे वाली स्लाइड चेंज करके हमने नॉर्मल फॉर्म में यूज़ कर लिया। दूसरा मेथड इसका आपको पता ही है कि ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर की टेक्निक से आप कर सकते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 दैट आई हैव टेकन। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए ट्राइंगल्स ABC the coordinate of A is 2, 3 and B is 4, -1 and C is 1, 2. Find the equations and length of the altitude from the vertex A. It means आपने यहाँ दो चीज़ें निकालनी है। पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ AD। इक्वेशन का मतलब ये परपेंडिकुलर है बिकॉज AD ऑल्टीट्यूड है। दूसरा लेंथ ऑफ AD। तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले स्लोप ऑफ BC निकालना चाहिए। 2 माइनस ऑफ -1 अपॉन 1 - 4 that is 3 upon -3 that is -1। आगे मुझे लिखना चाहिए स्लोप ऑफ AD नेगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज 1। फिर मुझे लिखना चाहिए इक्वेशन ऑफ AD। या मैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ BC भी लिख सकता हूँ, वो भी मुझे चाहिए तो है ही है। तो y - 2 इज इक्वल टू -1 इंटू x - 1। तो x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ BC आ गई। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ AD, वही नेगेटिव रेसिप्रोकल से x - y प्लस k 0। सेकेंड पासिस कहाँ से पास कर रही है? 2, 3 से। तो 2 - 3 प्लस k 1, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशंस क्या आ गई?
x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो पहला आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ AD। अब लेंथ ऑफ AD डायरेक्ट फार्मूला लगाया जा सकता है। देखिए लेंथ ऑफ AD, BC की इक्वेशन आपको पता है x प्लस वाई माइनस 3 0, तो फार्मूला लगेगा 2 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज 2 अपॉन रूट 2, आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ AD भी डायरेक्ट फार्मूले से आपने निकाल दी, इसलिए पहले मैंने इक्वेशन ऑफ BC निकालने का डिसीजन लिया। एंड क्वेश्चन नंबर 18, in question number 18, if P is the length of the perpendicular from the origin whose intercept on the axis are A and B, means ये कोई फिगर आपके पास ऐसे है जिसमें x इंटरसेप्ट आपको A दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट आपको B दिया हुआ है और ओरिजिन से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो P दिया हुआ है। इक्वेशंस ऑफ लाइन L क्या आ जाएगी, वो आपको पता है x अपॉन A प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन A प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। OL इज इक्वल टू P, और OL आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, 0 अपॉन A प्लस 0 अपॉन B माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 बाय A स्क्वायर प्लस 1 बाय B स्क्वायर इज इक्वल टू P। दिस implies taking reciprocals क्योंकि मोड तो 1 ही हो जाएगा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, हैंस प्रूव्ड। ये वही डायरेक्ट फार्मूला जो मैंने लगाया AX1 प्लस BY, फिगर्स बनाएंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेकिंग रेसिप्रोकल्स। कि अगर जो मैं रेसिप्रोकल्स लूंगा तो इस टाइप की इक्वेशनें बन जाएंगी कि 1 बाय A स्क्वायर प्लस, और फिर मैंने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड किए, तो दिस इज योर कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ 10.3।